everyone. First of all, I would like to welcome you all and thank you for supporting Swavlamban. I, Arushi Vaishnav, am an international economics student at University of Nottingham and Tübingen. Before the talk begins, allow me to introduce you to our honorable keynote speaker, Professor Santosh Mehrotra. He is a human development economist. He is also the chairperson of CISLS JNU and a former member of the Planning Commission. He is one of the authors of India's 11th and 12th five-year plan. He works for 15 years as an economist in two UN agencies, UNICEF and UNDP. Sir, it is a great honor to have you here with us today. Thank you very much. We are also thankful to Sri Nitish Anand for joining us. He is an alumni of IIM Calcutta and has a strong expertise with a 7-year experience in e-commerce. His inputs are very valuable in today's talk as he is closely associated with the subject and with Bihar. Our discussion today is about global supply chain disruption, Atmanirbhar Bharat, and the opportunity for underdeveloped states, a case of Bihar. Atmanirbhar, self-reliance, implies that the product and factor market are more flexible in order to allow the Indian economy to adapt to the problems and opportunities of an emerging post-COVID world. These are not normal times. The supply chains have been majorly disrupted, and hence the government of India has launched the mission to be self-reliant and overcome the greatest economic challenges experienced in years. If you have any questions, kindly type them in the chat box and we will try to address them in the end of the talk. First, I would like to invite Nitish Anand for the introductory remarks. Meanwhile, it is a humble request for everyone to mute themselves throughout the talk. Hi, Rishi. Thanks for the opportunity. Hello, sir, Santosh sir. Hi. So there are three topics that we are trying to discuss here. I have tried to tie them up as much as they can, and so that we can set the platform for your keynote speech. We will start with global supply chain, and all of us know that global supply chain has been disrupted as of today. The primary purpose for global supply chain is to ensure maximum profit and minimize waste. From an objective perspective, we can think that we should be exploiting the comparative advantage of a country. Production should be increased, and it should also lead to purchasing power improvement for the consumer. This also kind of ensures that the domestic monopolies are in check and prosperity reaches each and every individual. Now, factors which can affect global supply chain can be human resources, laws, logistics, and global supply chain is currently being guided by governments, World Trade Organizations, and they basically ensure that these supply chains remain regulated. They have multiple ways of doing it. They can do it through taxation, financial incentives, regulation, liberalization, and other measures. A well-functioning global supply chain should ensure that not only the supply should be maximized, but also the ability of masses to consume it, to earn their livelihoods should also be ensured. Sadly, that does not remain to be the truth for multiple reasons as of today. There are multiple ways in which this gets affected. An authoritarian regime can drive unnatural inefficiencies and can cause imbalances in trade. There are certain political and social instabilities which can deride economies from the growth track. There can be lack of technological capabilities within certain countries which can essentially not take the maximum advantage of it. And also there can be a lack of vision and poor execution to move population from one sector to other sector to ensure that the per capita income, if is saturated, people should be able to move to the next one. Now, with all of this as an important indicator, we have to understand that why today Atmanirbhar Bharat becomes one of the strong requirement of the day. Now, most of the economies in the world are facing a cumulative deficit of, because of global supply chain, they have not been able to maximize
or what they could have achieved over a period of time. Now, also a lot of economies are getting into middle income trap. By middle income trap, what I essentially mean is that they are not able to cut off from a certain income, particular per capita income, and they are not able to further go to ensure that prosperity reaches each and every individual. Now, this can only very few countries have been able to reach that level. Maybe South Korea would have been able to do it. Maybe USA has been able to do it, but it does not. It has not worked for multiple other countries. India right now is poised with the right demographic dividend as of today, and India has the next 20 years to break this trap and to ensure that they reach the levels that could make India as a prosperous country overall. Now, with this Atmanirbhar Bharat approach, we need to understand that how this can also tie up with states like UP, Bihar, and West Bengal, and how they can ensure that they can be a participant into it. States like Bihar, where the per capita income is as low as 35% of the national average, I think Atmanirbhar Bharat holds a strong chance where they uh, they should be able to double down on their effort to manufacture for themselves and consume for themselves. Problems with Bihar is that Bihar still remains a subsistence agriculture economy with close to 80-85% of the population still working with on agriculture. Marginalized population of Bihar is forced to become migrants and work for other state because of opportunities unavailability in their own state. Manufacturing till today is also only a minuscule 5% of Bihar's capability, while 65% of what a Bihari earns on an average is spent on food. Yet of the rest 35%, only 5% is manufactured by they themselves. Uh, these are all the broader points that I had. I would like to open the floor for Santosh sir and would like to hear his view on how he thinks about it. Right. Thanks very much indeed, Darushi, as well as Nitish. So, you know, you put me in a very difficult spot by asking me to speak about global supply chains and the poorest developing states of the country, because you have two levels of problems here. First, India itself is not very well engaged with global supply chains. Had it been, I think India's development story might have been quite different. And secondly, UP Bihar are least capable of actually engaging in global supply chains. So honestly, if this is going to be quite a difficult question for me to answer. तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जितना हो सकेगा मैं हिंदी में बोलूँगा, अगर आप सब लोगों की इजाज़त हो तो। बताइए, इजाज़त है कि नहीं है? हाँ जी सर, बिल्कुल आप जैसा बोलना चाहें। सर हिंदी मच बेटर होगा सर। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। लोग ज्यादा समझ पाएंगे जब उसकी रिकॉर्डिंग आएगी तो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही इरादा था। यस सर, यही इरादा था। मैं स्वयं लखनवी हूँ। हे भगवान, आई एम लूजिंग कनेक्टिविटी। आई जस्ट लॉस्ट कनेक्शन and I came back a few minutes ago, but anyway, अभी तो ठीक है। अच्छा, तो देखिए, अगर आप बुरा न माने तो मैं यथास्थिति की पहले बात करूं, ना कि जो एक डिजायरेबल स्थिति है, जो हमारी आकांक्षाएं हमारी हैं हमारे प्रदेशों के बारे में, पिछड़े प्रदेशों के बारे में, उनके बारे में, क्योंकि दिक्कतें आज की तारीख में
पहले से और विकट हो गई हैं। तो just to repeat what I said earlier, let me just re-emphasize that global supply chains involve manufacturing, और अगर मैन्युफैक्चरिंग ही आपकी काफी इवॉल्व्ड नहीं है, देश की, मैं देश की बात कर रहा हूं, यूपी बिहार की नहीं बात कर रहा, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी और शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एम्प्लॉयमेंट लगभग वहीं पर है जितना 30 साल पहले था, 1991 में जब हमारे आर्थिक सुधार शुरू हुए, द इकोनॉमिक रिफॉर्म, तब में और आज में कोई खास अंतर नहीं है। शेयर ऑफ जीडीपी की बात कर रहा हूं, शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश में कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा कि मैन्युफैक्चरिंग पिछले 30 साल में बढ़ी नहीं, ये नहीं कह रहा। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टूड दिस। मैं शेयर की बात कर रहा हूं। मैं शेयर की बात क्यों कर रहा हूं, समझाता हूं। देखिए, जिस विकास के दौर में हमारा देश रहा है पिछले 30-40 साल से, उसको समझना आवश्यक है, तब हम फिर ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे आएंगे और फिर हम यथास्थिति पे आएंगे। बात समझने की जरूरत यह है कि हमारी विकास दर में सुधार आया 91 के बाद, इसमें कोई दो राय नहीं। और विकास दर 90 के दशक में 80 के दशक के मुकाबले काफी बेहतर हुई, और सन 2000 के दशक में 90 के दशक के मुकाबले और बेहतर हुई। मगर मुद्दा ये है कि सिर्फ विकास दर से बात नहीं बनती। बात बनती है कि आप क्या वो ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहे हैं जिसके आधार पे आप अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा पाएंगे कि नहीं। वो ट्रेजेक्टरी क्या होती है? देखिए, पहली चीज तो मैं डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है उस विचार को या उस धारणा को समझा दूं, क्योंकि लोग समझते हैं अच्छा यंग नेशन, हाँ ठीक है यंग नेशन। सवाल यह है कि यंग नेशन का भी एक मतलब समझ होती है कि व्हाट इज हैपनिंग टू द शेयर ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब यह होता है कि जो अंश है पूरी जनसंख्या का, वो अंश जो वर्किंग एज में है, वो अंश, उसका अनुपात बढ़ रहा है। और जो डिपेंडेंट्स हैं, जो 15 साल की उम्र से कम है, जो 65 साल की उम्र से ज्यादा हैं, वो डिपेंडेंट कहलाते हैं, उनका अनुपात कम हो रहा है। और वर्किंग एज पॉपुलेशन शेयर का अनुपात बढ़ रहा है। तो ये हुआ डेमोग्राफिक डिविडेंड। उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए आवश्यक ये है कि आपकी विकास दर पहले के मुकाबले तेज हो, और वो संभव है इसलिए तेज होती है जब डेमोग्राफिक डिविडेंड का दौर आता है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को नौकरियां मिलती हैं, नॉन एग्रीकल्चरल नौकरियां मिलती हैं, उस मुद्दे पे मैं वापस आऊंगा, नॉन एग्रीकल्चरल की बात जो कर रहा हूं, वैसे वैसे उनकी सेविंग्स बढ़ती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री और सर्विसेज में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, इनकम ज्यादा होती है एग्रीकल्चर के मुकाबले। ये दुनिया का उसूल है, ठीक है। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से सेविंग, बचत की दर सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले बचत की दर बढ़ जाती है। जब बचत की दर बढ़ती है, मैं टोटल सेविंग्स टू जीडीपी की बात कर रहा हूं, जब वो बढ़ जाती है तो निवेश की दर बढ़ती है। जब निवेश बढ़ता है तो विकास दर बढ़ती है। तो ये हुआ एक
डेमोग्राफिक डिविडेंड का दौर और उसका फायदा उठाने के लिए जरूरी यह है कि लोग एग्रीकल्चर छोड़ें और इंडस्ट्री और फिर सर्विसेज में जाएं। इंडस्ट्रियलाइज्ड देशों का एक ट्रेजेक्टरी थी कि पहले विकास इंडस्ट्री में हुआ, इंडस्ट्री शेयर टू जीडीपी, इंडस्ट्री शेयर इन एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, और उसके पश्चात सर्विसेज का शेयर बढ़ा। उसके पश्चात हमारे यहां क्या हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री का शेयर बढ़ा नहीं है। यही बात से शुरुआत करी थी मैंने कि जो शेयर इंडस्ट्री और इंडस्ट्री का या मैन्युफैक्चरिंग का 1991 में था, वो आज भी है। और शेयर वही रहने का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग हैज नॉट बीन द लीड सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार विकास दर की रफ्तार से तेज नहीं है, और तेज होना आवश्यक है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग की विकास की रफ्तार ज्यादा तेज होगी पूरी इकोनॉमी के मुकाबले, तब वो लीड सेक्टर कहलाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि आंकड़े ये बता रहे हैं कि 16-17% था जीडीपी का भाग मैन्युफैक्चरिंग 91 में, वो आज भी वही है। मेक इन इंडिया के बावजूद, प्लीज मेहरबानी करके समझ लीजिए। और मेक इन इंडिया के दौरान उम्मीद यह थी कि मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एक्चुअली घट गया। मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन एम्प्लॉयमेंट घटा ही नहीं, टोटल एब्सोल्यूट लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट फेल। 60 मिलियन से 6 करोड़ से 60 मिलियन से घट करके 57 मिलियन रह गया। 2012 और 2018 के बीच की बात कर रहा हूं, और 19 में कोई फर्क नहीं आया। तो देखिए, इस तरीके से आप, मैं पहले भी कह चुका कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में हम थोड़े बहुत तो हैं, मगर कुछ सेक्टर्स में हमारी जो डिपेंडेंस है वो भयंकर रूप से इंपोर्ट्स पे बढ़ गई है, और कुछ सेक्टर्स में हमने काफी सफलताएं भी प्राप्त करी हैं। अब मैं आज का उदाहरण देता हूं। आज बहुत कोशिश ये हो रही है कि भारत आत्मनिर्भर बन जाए कई सेक्टर्स में। जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जो हमारे देश का एक बड़ा माना जाना सेक्टर है, दुनिया में माना जाता है, क्योंकि हम जेनेरिक ड्रग्स के बहुत भारी एक्सपोर्टर हैं। यूएसए और यूरोप का मार्केट ही नहीं हमने काफी कैप्चर कर रखा है, मगर विकासशील देशों का मार्केट भी हमने जेनेरिक ड्रग्स का कैप्चर कर रखा है, खास तौर से HIV एड्स, खास तौर से वैक्सीन इत्यादि। मगर आप आजकल पढ़ रहे होंगे कि एक जमाना था कि हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि बल्क ड्रग्स, जिनके आधार पे वो फॉर्मुलेशंस बनते हैं जो आप और मैं खरीद करके फार्मेसी से खाते हैं। तो थोड़ा सा समझिए कि फार्मेसी इंडस्ट्री और ड्रग इंडस्ट्री में क्या स्टेजेस हैं। पहले केमिकल होता है, उस केमिकल्स को खास ढंग से, उन केमिकल्स को खास मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन करके आप वो बल्क ड्रग्स बनाते हैं, जिनके आधार पे वो ड्रग्स बनती हैं जिसको हम फॉर्मुलेशन कहते हैं, जो पत्ता हम दुकान में लेने जाते हैं। तो एक जमाना था जब
until 1990, we had a massive manufacturing capacity of the base chemicals, which were then used to manufacture bulk drugs, which then used to be used to make formulations. हुआ क्या? इकोनॉमी के ओपन होने के पश्चात, क्योंकि चाइना हमसे बेहतर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में इन्वेस्ट कर चुका था और प्रोडक्टिविटी उनकी ज्यादा थी, वो भी लो वेज नेशन थे हमारी तरीके से। तो याद दिला दूं कि सन 80 तक जब उनका इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ है, तब उनकी वेजेस हमारी वेजेस और उनका पर कैपिटा इनकम हमारा पर कैपिटा इनकम बराबर था। आज वो चौगनी पर कैपिटा इनकम लेवल पे हैं हमसे। अच्छा, तो और तो पॉइंट ये है कि वो ऐसा क्यों हुआ, चाइना हमसे क्यों आगे निकल गया। चाइना हमसे आगे इसलिए निकल गया कि उन्होंने एक औद्योगिक नीति अपनाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसे कहते हैं। तो पिछले कई सालों से मैं इस विषय पे लिखता चला आ रहा हूं कि हमें एक औद्योगिक नीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ईस्ट एशिया के देश, क्योंकि चीन जैसा देश, ये सब औद्योगिक नीति के आधार पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, अपना औद्योगिक सक्षमता जो है उनकी, उसको उन्होंने बलवान बनाया। इतना बलवान बनाया कि आज की तारीख में चाइना को आप फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। भारत को कोई फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहता। फैक्ट्री एशिया अगर कोई एक टर्म है, और फैक्ट्री एशिया टर्म है, तो वो ईस्ट एशिया और चाइना की वजह से है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि इस दौर में हमारा संग हुआ ये फार्मास्यूटिकल्स के संग कि जो हम बल्क ड्रग्स बनाते थे उनमें हम कमजोर होते चले गए। हम इंपोर्ट करने लगे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को। आजकल अखबार में आप लोग पढ़ रहे होंगे एपीआई। तो हाँ, वुड यू बिलीव इट, 70% हमारी फॉर्मुलेशंस का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी बल्क ड्रग चाइना से आता है। अरे पैरासीटामोल का बल्क ड्रग वहां से आता है। वो तो यहाँ पर पुड़िया बना करके पत्ते में डाल के बेचा जा रहा है। पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन जो आप सब लोग खाते होंगे, या पैरासीटामोल जिंदगी में खा चुके होंगे, ये आत्मनिर्भरता है? ये आत्मनिर्भरता नहीं। तो जाहिर है हमें उस आत्मनिर्भरता पे जाना पड़ेगा जिसमें हम वो बल्क ड्रग्स बनाना शुरू करें। तो आवश्यकता ये है कि अब आगे अगर हमको ये एहसास हो गया है, मानसिकता में ये बात बैठ गई है कि औद्योगिक नीति की आवश्यकता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है तो हमें औद्योगिक नीति बनाए बिना काम चलेगा। और वो क्रॉस सेक्टोरल नीति होनी पड़ेगी। बात समझिए, सिर्फ सेक्टोरल नीति नहीं। ये नहीं कह सकते आप कि हम सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक नीति बना लेंगे, या हम गारमेंट्स के लिए एक नीति बना लेंगे, क्योंकि हमसे ज्यादा गारमेंट्स का एक्सपोर्ट बांग्लादेश कर लेता है, या वियतनाम तो छोड़ ही दीजिए। ये नहीं चलेगा। आपको वो गारमेंट्स के लिए भी नीति बनानी होगी, मगर आपको एक क्रॉस सेक्टोरल नीति बनानी होगी। उसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने जो इस विषय पे लिखा हैगा, अभिषेक मेरे छात्र हैं, मैंने उनको अभी देखा था। मैं अभिषेक रंजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभिषेक जेएनयू बॉय की बात कर रहा हूँ। क्यों जेएनयू बॉय, तुम छुप गए हो? क्यों, क्या हुआ? नहीं है सर हम। हाँ,
तो मैं ये कह रहा हूँ, और अभिजीत भी होंगे शायद इसी ग्रुप में, तो ये सब पढ़ चुके हैं जो मैं सब अब आपको बता रहा हूँ, तो ये सब जानते हैं। ये लेक्चर आप उन्हीं से दिलवा लेते तो ठीक था। एनीवे, देखिए, तो मोटी बात तो ये है, मुझे नहीं लगता कि यूपी बिहार उस स्तर तक में पहुंचे हैं कि वो इस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए अब आज की स्थिति पे आते हैं, और आज की स्थिति को मैं कनेक्ट करूंगा जो मुद्दे नीतीश ने उठाए, ह्यूमन रिसोर्सेज के वगैरह, डिमांड के वो सारे मुद्दे उठाऊंगा मैं। तो देखिए, आज की स्थिति तो ये है कि हमारे देश के ऊपर जो आपदा आई है वो हमारे देश के इतिहास में इतनी बड़ी आपदा कभी नहीं आई। पहली चीज तो ये बात समझना जरूरी है। अगर ये आप इस स्थिति की विकटता, इस स्थिति की गंभीरता को नहीं समझेंगे तो वो जो उपाय आप अपनाएंगे वो खरे नहीं उतर पाएंगे। जरूरतों के मुकाबले वो खरे नहीं उतर पाएंगे। ये आपदा ऐसी कभी हमारे देश पे नहीं आई कि साथ में एक ग्लोबल पैंडेमिक हमारे देश पे कहर बरसा रहा है, पूरे देश में फैलता तेजी से चला जा रहा है, किस भयंकर रफ्तार से फैल रहा है, और उसके संग संग एक आर्थिक विकट समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो गई है, जिसका एक साधारण प्रतीक ये है कि इस वर्ष पहली बार शायद 30-40 साल में हम पाएंगे कि हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ग्रोथ विल बी लेस देन 0। दिस हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। ये बिल्कुल पूर्ण रूप से अप्रत्याशित विकट विपदा है। अच्छा, और ये न समझिए कि हम सही तरीके अगर नहीं भी अपनाएंगे तो भी ये इकोनॉमी अपने आप अपने बल पे खड़ी हो जाएगी अगले साल तक। ये तो केवल टेम्पररी लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम हुई है। ये आपको संशय हो सकता है कि अरे अप्रैल के महीने में तो बेरोजगारी 8% से 24% हो गई थी, अब तो वो घट करके 11 हो गई है, तो अब क्या दिक्कत है। तो 11 अगर हो गई है तो वो फिर भी लगभग 50% ज्यादा है जो वो जब जनवरी में फरवरी में थी। और ये स्थिति में सुधार नहीं होने वाला है, ये स्थिति और बिगड़ने वाली है। समझ लीजिए क्यों सुधार नहीं होने वाला है, क्यों, और ये सुधार हुआ क्यों है ये भी समझ लीजिए। पहले तो ये एकदम से 24 से 11 हुआ क्यों है? पहले हम ग्रामीण इलाकों की स्थिति देख लेते हैं और फिर शहरी इलाकों की देखेंगे, और हम सीधे इसके बाद सच बताऊं मैं आपको बिहार पे आ जाएंगे, बिहार यूपी पे, खासतौर से बिहार में, क्योंकि पता नहीं मुझे आप में से कितने बिहार के हैं, मगर आपके टाइटल में बिहार था तो मैं इसलिए इसके बाद अधिकतर अपनी बात बिहार पे ही केंद्रित रखूंगा। तो ग्रामीण इलाकों में स्थिति में सुधार क्यों आया?
दो कारण है। एक कारण यह है कि इन महीनों में जो श्रमिक होते हैं वो वापस, माफ करिएगा मैं अपना फोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ। ये जो श्रमिक शहर में जो आता है पलायन करके, वो गांव वैसे भी जाता है। क्यों? क्योंकि कटाई का मौसम होता है, फसल की कटाई का मौसम होता है, पहली बात। तो वो पहुंचा और कटाई का मौसम शुरू हो गया था और कटाई हुई, और कटाई जैसे ही खत्म होती उसके बाद उसको बुआई का सीजन आ जाता है। तो अभी बुआई चल रही है। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट suddenly increased. The number of workers came back, and for these reasons, cutting and sowing, employment in rural areas increased, therefore unemployment fell. But this is seasonal. The cutting season is already gone, the sowing is finishing. Once the sowing is finished, these people will be again very poorly employed. Give me a second, there's someone who's trying to reach me and I need to send them a message. Just bear with me. No problem, sir. That's okay. What time do we plan to finish? Can you give me an idea? So our plan was to finish around 7, but it's up to you if you need. No, that's fine. Okay. So I'll finish quite quickly, so because I want to sort of move through this rapidly so that you get a chance to ask questions. So as far as urban areas is concerned, उसका कारण ये है कि वहां जो बेरोजगारी में कमी आई, उसका कारण ये है कि जो मोची होता है, जो नाई होता है, जो इस्त्री प्रेस करने वाला होता है, जो दर्जी होता है, उसको लॉकडाउन की वजह से उसको बंद कर दिया गया था। वो घर बैठ गया था। अब वो सड़क पे आ गया वापस, रेडी वाला भी वापस आ गया, सब्जी वाला भी वापस आ गया, सभी वापस आ गए। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लाइवलीहुड्स वापस आ गए। अब आप ये इससे उम्मीद लगाएं कि एमएसएमईज जो बंद हो गई थी वो एकदम से खड़ी हो जाएंगी। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अभी सर्वे हुआ है, कई हजार यूनिट्स का सर्वे किया आईमो ने, और उनके ओनर्स ये कह रहे हैं, 1/3 ओनर्स ये कह रहे हैं कि हम बंद होने की कगार पे हैं या बंद हो गए। तो बेरोजगारी उनकी बढ़ेगी नहीं क्या? अभी इस मुद्दे पे फिर से आ रहा हूं मैं। पहली चीज, रोज ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में खबर आ रही है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर आज इस इंडस्ट्री में लोगों को ले ऑफ किया गया, कल उस इंडस्ट्री में ले ऑफ किया गया, परसों उस इंडस्ट्री में ले ऑफ किया गया था। रोज हो रहा है ये। इसका असर डिमांड पे होगा। अभी नीतीश जी ने डिमांड की बात करी, द एबिलिटी ऑफ द मैसेज टू कंज्यूम, बहुत पते की बात करी नीतीश जी ने। तो जब एम्प्लॉयमेंट इतनी भयंकर रूप से कम होता है और बेरोजगारी इस भयंकर रूप से एकदम से बढ़ती है, तो जाहिर है आमदनी कम हो जाती है। और ये आमदनी किस हालात में कम हुई ये भी समझ लीजिए। तो अब मैं थोड़ा सा फिर से इतिहास पे आता हूं। मैंने शुरुआत की थी इतिहास पे, फिर मैं फिर इतिहास पे आता हूं। समझना आपको आवश्यक है, जिसमें आप समझें कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स में हम आज हमने निश्चय कर लिया, कल हम उसके भाग हो जाएंगे। संभव तब होता है ये सब
जब आप उसकी तैयारी सालों पहले कर चुके हों, ये ओवरनाइट स्विच नहीं होता। स्थिति समझिए कि 2004-05 और 11-12 के बीच में एनएसएस के आंकड़े ये बता रहे हैं कि लगभग 7.5 million new non-agricultural jobs were being created every year, when only 2 million young people were joining the labor force. 7.5 versus 2, ठीक है। अब देखिए 12 और 18 के बीच में क्या हुआ। एनएसएस के आंकड़े बता रहा हूं मैं, ये मेरे जमा किए हुए आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े। और मैं उस नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स का भाग हूं, तो मैं कुछ थोड़ा बहुत इस विषय में समझता हूं। इन पे, इस मुद्दे पे महीनों कोर्स देता हूं, महीनों लेक्चर देता हूं, महीनों सालों से इन विषयों पे लिख रहा हूं। तो 2012 और 18 के बीच में उस 6 साल के दौरान non-agricultural job growth fell from 7.5 million per annum earlier to 2.9 million. That means it came down to 40% of what it was. At the same time, the number of entrants into the labor force increased by 5 million to 5 million per annum. पहले 2 million था, 5 million हो गया। अब देख लीजिए, 5 million are entering every year, but only 2.9 million jobs are being created non-agri. मैं non-agri क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कोई कृषि में काम नहीं करना चाहता। क्या आप में से कोई है ऐसा जो खेती करने जाना चाहेगा? नहीं। अरे वो आपके माँ बाप जो खेती करते थे वो नहीं करना चाह रहे हैं, वो छोड़ करके जा रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं। बिहार में मेरी एक पीएचडी स्टूडेंट है, वो यही हमको बता रही है कि जो मिडिल पेजेंट है वो सारा जमीन बेच करके भाग रहा है शहर। तो उनके बेटे बेटी क्या मतलब शहर आकर के नहीं पढ़ेंगे या दिल्ली आकर नहीं पढ़ेंगे? और वो जब शहर आके पढ़ेंगे और दिल्ली में आकर पढ़ेंगे, क्या वो खेती करने जाएंगे? नहीं। तो non-agri jobs were growing more slowly while the number of entrants into the labor force increased. That's why the open unemployment rate rose. It tripled. Youth unemployment rate was केवल 6% थी 2012 में, वो तिगनी होकर के 6 साल के अंदर 18 में 18% हो गई, 3 गुना। और सुनिएगा, आप अगर ग्रेजुएट हैं, मतलब बीए पास कर लिया है, तो क्या है, क्या थी रेट और अब क्या हो गई? मैं बिहार की अगर आप, मैं खैर देश की बताता हूं, फिर बिहार पे आऊंगा एक सेकंड में, तो आप समझिएगा कि स्थिति कितनी गंभीर है। 2011-12 में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.8% थी। सॉरी, ये बिहारी की बता रहा हूं मैं। तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पहले मैं देश की पहले बता दूं। देश की 6 से 18 हुई उस 6 साल में, और अगर आप स्नातक हैं, मतलब आप ग्रेजुएट हैं, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 36%, 36%, 18 की दुगनी। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 33%, और आप टेक्निकल डिग्री लेकर के आए हैं कुछ, तो वो भी 34%। वोकेशनल ट्रेनिंग करके आए हैं, स्किल इंडिया के आप स्नातक हैं तो 32%। ये एनएसएस के आंकड़े हैं, ये मैं नहीं इजाद कर रहा हूं, प्लीज मुझे ना गलियाइएगा बाद में। तो ये स्थिति थी कोविड पैंडेमिक से पहले। गंभीरता समझिए, अगर आप लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं और आपको नौकरियां नहीं मिल रही और आप सब बैठे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई और उपाय नहीं है, तो उसका कारण ये है, ये स्थिति है। जो स्थिति आप
मतलब ऐसे भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और आप फिर भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मगर पहले ओपन लेबर मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, वो कम होती चली जा रही हैं, और जाहिर है जब वो वहां कम होंगी तो यूपीएससी की तैयारी में आपका कंपटीशन और बढ़ जाएगा, आपकी मुसीबतें और बढ़ गई। क्योंकि बिहार यूपी से तो जब आप यूनिवर्सिटी के स्नातक हो जाते हैं तो फिर आप यूपीएससी के बारे में और उसके अलावा तो सोचता नहीं कोई। खैर, तो ऐसी स्थिति में और जब ग्रोथ रेट कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है तो हमारे सामने क्या उपाय है? तो पहले तो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, जल्दी से, ज्यादा देर नहीं करूंगा मैं। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही करूंगा, क्योंकि ये कोविड पैंडेमिक जो है, इस विषय पे भाई एक महीना भर पहले 7 जून को मैंने देखा, मैंने अपने नोट्स की डेट में देखा, 7 जून को मैं बिहार पे ही बोल रहा था, और उस तारीख को बिहार में टोटल कोविड के केसेस 3872 थे। आज कितने बिहार में केसेस हैं? उसके 3 गुना, 11700। और आपको मैं एपिडेमियोलॉजिस्ट की बात बता देता हूं। एपिडेमियोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश में टेस्टिंग उतनी उस रफ्तार से नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश बड़ा है और जनसंख्या बड़ी है। तो असलियत में ये 11700 का जो आंकड़ा है आज की तारीख का बिहार का, जो 1 महीना पहले से 3 गुना है, ये असलियत में इसका 3 गुना है, होना चाहिए। ये होना चाहिए लगभग 33-34 हजार केसेस। इस तेजी से, इस रफ्तार से ये पैंडेमिक दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है। अब आप सोच लीजिए, तो इससे बिहार सरकार कैसे जूझेगी? अब उसके लिए क्या बिहार के पब्लिक हेल्थ सिस्टम पूर्ण रूप से तैयार है कि नहीं है? देखिए, हमारे उत्तर के प्रदेशों में पब्लिक हेल्थ सिस्टम की समस्या पुराने जमाने से बेहद गंभीर है। और इस विषय पर मैं कुछ आपको आंकड़े बताना चाहता हूं, जो अभी मेरी बिहार के विषय पर एक न्यूज़पेपर पीस आया था। तो देखिए कि क्या स्थिति है। मैं केवल पब्लिक हेल्थ सिस्टम की बात करूंगा। पब्लिक हेल्थ सिस्टम हमारा बिहार में कितना तैयार है। एक सेकंड मुझे दीजिए। हाँ, तो देखिए, WHO के मुताबिक एक डॉक्टर पर 1000 पॉपुलेशन होना चाहिए। 1 डॉक्टर पर 1000 पॉपुलेशन। बिहार में क्या स्थिति है? 1 डॉक्टर सर्व्स एन एवरेज ऑफ 29,000, 29,000 लोग, 29 गुना WHO के स्टैंडर्ड से। सिर्फ यही दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये भी है कि जो डॉक्टर हैं बिहार में, वो अधिकतर शहर में रहना चाहते हैं। क्या ताज्जुब की बात है। अरे, जब मिडिल पेजेंट्स बिहार के जमीन बेच करके छोटे काश्तकार को शहर में आकर के रहना शुरू कर रहा है, तो डॉक्टर क्यों नहीं रहना चाहेगा? तो रूरल एरियाज में जहां ये सारा माइग्रेंट लेबर गया है और कोविड इन्फेक्टेड गया है, क्योंकि लॉकडाउन 4 घंटे की नोटिस पे किया गया, तो ये लोग
एक डेढ़ महीना तो कहीं जा नहीं पाए, जो गए वो तो चलो निकल गए। उनकी डेथ्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। 666 डेथ्स, माइग्रेंट वर्कर्स, पीपल डाइड ऑन द वे। ईदर दे डाइड because they were walking and they got exhausted, or they died because they got exhausted, they were cycling and they were carrying their families with them, or they got crushed under trains, or they died because they got COVID and they were traveling in trucks like cattle. 667 by 24th of May had died. मगर जो हुआ सो हुआ, ये पहुंचे अपने गांव, but by now they were infected. Why do you think the number of cases is galloping like this? The interesting thing I noticed that on the 2nd of June, when I told you there were only 3,872 cases, 3/4 of them were those of migrants. 3/4, 3/4। तो उस स्थिति में फर्क थोड़ी ना आया होगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो 1 जून के बाद ट्रेनें चली वो कोविड लेकर के गए होंगे, जबकि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ 4 घंटे की नोटिस पे, तब हमारे देश भर में 692 सिर्फ 692 केसेस थे। एनीवे, तो पॉइंट यह है कि अब इस दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है पैंडेमिक। ऐसी स्थिति में सरकार को अपने हेल्थ सिस्टम को सुदृढ़ बनाना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, 2-3-4 बातें करके मैं और बात अपनी खत्म करूंगा। ये भी समझिए कि आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज आया 20 लाख करोड़ का, उस आत्मनिर्भर पैकेज को अगर आप इकोनॉमिस्ट के नजरिए से देखें तो आप पाएंगे, ये एक अर्थशास्त्री के नजरिए से देखें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स समझता है, आप ये पाएंगे कि 20 लाख करोड़ में से 90% बैंक लोन्स, बैंक गारंटीज, बैंक लिक्विडिटी एंड इस तरीके की चीजों में के लिए अनाउंस किया गया। उसका 10% यानी 1% ऑफ जीडीपी, बिकॉज 20 लाख करोड़ इज 10% ऑफ जीडीपी, 1% ऑफ जीडीपी was in the form of fiscal stimulus. मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। और ये इसमें ये जो शुरू का 1.7 लाख करोड़ का 26 मार्च का जो अनाउंसमेंट है वो मिलाया हुआ है, जोड़ा हुआ है, इंक्लूडेड है, क्योंकि इन एनी केस वो 1.7 लाख करोड़ में से नया एक्सपेंडिचर लगभग 1 लाख करोड़ केवल था, और जो बकाया था वो 2021 के बजट में वैसे ही अनाउंस हो चुका था, उसको आप फ्रंट लोड कर रहे थे और कुछ नहीं। नाउ please compare this 1% of GDP. I want to finish fast so that I allow you to ask questions. Compare this 1% of GDP fiscal stimulus as opposed to the monetary policy, the liquidity for the banks, etc. Compare it to what happened in 2008. And in 2008, the global economic crisis had impacted India adversely. But the fiscal stimulus that was put in place, in addition to the monetary policy stimulus, was 3 to 4% of GDP. When that crisis was not even half as severe as this crisis is. So please try and appreciate and understand this basic macroeconomic fact, that at a time when jobs are being lost by the millions, 100 million people suddenly overnight lost their jobs, when wages are not rising, you need to put money into people's hands, into people's pockets, so that demand rises. नीतीश जी ने डिमांड की बात करी थी। डिमांड होगी तब तो मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बढ़ेगी। खाने पीने की बात अलग है। डिमांड कहां से होगी अगर आपकी नौकरी चली गई और आपकी वेजेस नहीं बढ़ रही हैं और आपको कोई खास उम्मीद भी नहीं है
कि आपको नौकरी वापस आने वाली है, जल्द नहीं वापस आने वाली, क्योंकि आप एक बिहारी आम वर्कर इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो आकर के बैंकिंग में घुस जाएगा या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में घुस जाएगा या एकदम से हेल्थ सिस्टम में अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वो डॉक्टर बन जाएगा। इतना पढ़ा लिखा ही नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज Nitish talked about. Point is that what we needed to do was to put in place a much bigger fiscal stimulus, and we must still do it, because if we don't do a much larger fiscal stimulus, demand will not rise, and because demand will not rise, the loans that you are planning to give through the banks will come to naught. कुछ नहीं उसका फायदा होगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हमें बता रहा है कि हम लोन्स लेने भी जा रहे हैं तो हमको लोन नहीं मिल रहा है, कि उसमें इतनी बंदिशें हैं और इतनी बैंक वाले बैंक ने जो सरकार ने लगा रखी है, बैंक कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो अपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है। तो आपने लोन अगर पहले से ले रखा है तब आपको मिलेगा, आपने अगर किस्तें सारी ठीक से भरी हैं तब आपको मिलेगा। अरे कितने एमएसएमईज ऐसे होते हैं जो इस तरीके से कभी लोन लिए हैं या नहीं, या उन्होंने किस्तें पूरी भरी हैं कि नहीं। तो अगर ये इस तरीके की कंडीशंस पूरी नहीं है तो आप नया लोन ले नहीं सकते। मैं पॉइंट ये है कि अगर आप डिमांड नहीं बढ़ाएंगे तो ये फैक्ट्रियां जो बंद हो रही हैं, हो गई हैं, वो क्यों फिर से खड़ी हो जाएंगी? वो किसको बेचेंगे? तो लोन्स आप एमएसएमईज या कोई भी लोन अपना बढ़ाएगा नहीं ऐसी गंभीर स्थिति में। तो अ फिस्कल स्टिमुलस वाज नीडेड। आल्सो इट्स अ गुड थिंग दैट मनरेगा एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज, बट यू नीड आल्सो अर्बन मनरेगा। फाइनली लेट मी से कि it's very important that the government also puts in place a minimum income guarantee, यानी कि हर ग्रामीण इलाकों में 70% परिवारों को और शहरी इलाकों में 40% परिवारों को अगले 3-4 महीने के लिए 2-2.5 हजार रुपए महीना दिया जाए। और ये संभव है, हमारा देश इतना अमीर है कि ये संभव है। तब ये संभव होगा कि आपकी इकोनॉमी रिवाइव करे, और 3-4 महीने के बाद जब ये इकोनॉमी थोड़ा बहुत रिवाइव करना शुरू करेगी, तब आप उस 2.5 हजार रुपए महीने के को कम कर सकते हैं। और ये भी आखिरी बात मैं कहूंगा, फिर मैं चुप हो जाऊंगा। आपकी बात सुनना चाहता हूं कि इसमें खर्चा ज्यादा नहीं आने वाला, क्योंकि आपको पीएम किसान की जगह इसको करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो 70% ग्रामीण इलाके में परिवारों को इस स्कीम में जोड़ना चाहता हूं, तो उसमें अधिकतर पीएम किसान के परिवार भी जुड़ जाएंगे। और उसके अलावा, क्योंकि पीएम किसान केवल ओनर कल्टीवेटर के लिए है, वो टेनेंट फार्मर के लिए नहीं है, वो लैंडलेस लेबरर के लिए नहीं है, वो रूरल नॉन फार्म वर्कर के लिए नहीं है, और ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ राशन बढ़ा देने से डिमांड नहीं बढ़ जाने वाली, वो जिंदा रह सकेगा अगर राशन मिल भी जाता है उसको, मगर इसका मतलब नहीं कि इकोनॉमी में डिमांड आ जाएगी। याद फिर से आपको दिला रहा हूं कि नीतीश जी ने डिमांड की बात करी। तो पॉइंट ये है, ये 4-5 कदम उठाने पड़ेंगे तो अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को, बिहार की अर्थव्यवस्था को जो भयंकर रूप से डगमगा गई है, उसको आम आदमी को आत्मनिर्भर पहले बन जाए, उसके बाद देश आत्मनिर्भर बने। और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। टिकटॉक को बैन कर दीजिए, उससे नौकरी नहीं खड़ी हो जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत अच्छे से ओवर द टाइमलाइन जो स्टैटिस्टिक्स बताई, उस वजह से हमें बहुत अच्छे से समझ आया आप जो बोलना चाह रहे थे। और मैं भी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हूँ, बट आपने जिस तरीके से स्टैटिस्टिक्स बताई उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी परमिशन हो तो आप थोड़े से प्लीज
ओके, पहले हम नीतीश आनंद जी से पूछना चाहते हैं अगर उनके पास कोई क्वेश्चंस हो। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल ये है कि बिहार जैसे स्टेट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कहीं कोई स्कोप अभी फिलहाल नहीं दिखता है, ये हो भी नहीं रहा है। और हमारे देश में पिछले 20-30 साल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 40% से अभी कुछ 75% टाइप जा रहा है, अगर मेरा डेटा सही है तो। मैंने इंटरनेट पे ही ये चीज सर्च किया है इन टर्म्स ऑफ स्टेट बाय स्टेट। विदाउट एनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू investing in infrastructure, through opening PSU if we can, because अभी बिहार में सिर्फ इंडियन ऑयल है और एक NTPC है। इज दैट अ वे जिसके थ्रू हम लोग ग्रोथ ड्राइव कर सकते हैं बिहार में? ये सस्टेनेबल है? नहीं, छोटा सा जवाब दे रहा हूं, नहीं। आज की, मैं समझाता हूं आपको, आज की तारीख में industry share in GSDP of Bihar is 8% compared to India's 17%. In the non-agricultural sector, the economy is largely services driven. Services have grown, तो सर्विसेज में ही और इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो शायद सर्विसेज में कुछ जॉब्स की संभावना है। और कंस्ट्रक्शन में पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात आपने कही, वो बात आपकी सही है। मतलब ये बात मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि तो देश भर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाना पड़ेगा, और अगर बढ़ाया जाएगा तो कंस्ट्रक्शन शायद डिस्कनेक्ट हो गए सर, हम लोग वेट करेंगे। आई थिंक सर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया टेक्निकल, उसकी वजह से। अगर आप चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आप तब तक हैंडल कर सकते हो तो थोड़ा बहुत तो भी। एक क्वेश्चन है अभिजीत सेनापति का, जिसमें इन्होंने पूछा है कि हाउ मच शेयर ऑफ जीडीपी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इज required for supply chain management at national level. To answer this, manufacturing employment, or I have a slide which जो मैं दिखा सकता हूं। ये दिख रहा है क्या? नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा। ओके, सो इट डिपेंड्स। सो अगर आपका सवाल ये है कि कितने लोगों, अगर आपका सवाल सही समझ रहा हूँ कि कितने लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉय होना चाहिए, कितने लोगों को एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय होना चाहिए, कितने लोगों को सर्विसेज में एम्प्लॉय होना चाहिए, ये डिपेंड करता है एट व्हाट स्टेज ऑफ ग्रोथ द कंट्री इज। जैसे जस्ट टू गिव यू अ नंबर, चाइना के लिए आज के डेट में चाइना का टोटल 25% उनकी जीडीपी, एक सेकंड, हाँ, चाइना की जीडीपी कुछ 39% आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग से है, और इसमें वो 27% लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। चाइना का सर्विसेज में 54% इज देयर पोर्शन ऑफ जीडीपी, और उसमें कुछ 46% लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इज 7% ऑफ जीडीपी एंड दे आर एम्प्लॉइंग 26% ऑफ पीपल ओवर देयर। नाउ चाइना इन को आप हाफ डेवलप, मतलब नॉट कंप्लीटली डेवलप एज मच एज यूएस बोल सकते हैं, लेकिन आप नोटिस कर रहे होंगे कि अगर आप रेशियो निकालेंगे कि कितना जीडीपी है और कितना लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं, तो अदर देन एग्रीकल्चर बाकी दोनों में चाइना का रेशियो मोटा मोटी सेम है, विच बेसिकली सजेस्ट दैट दे हैव द सेम काइंड ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ on an average, a person who's employed in these industry would end up making same kind of money, or the production is in the same ratio. वर्सेस अगर आप उसको इंडिया से कंपेयर करेंगे तो इंडिया में आज की डेट में कुछ 15% एग्रीकल्चर हमारे जीडीपी का पोर्शन है, और हम कुछ 44% लोगों को इसमें एम्प्लॉय करते हैं, जो कि 1
ratio wise it is quite poor. If that answers the question, या आपका question कुछ और elaborative है? If I can answer, and Santosh has joined, so maybe he can take it up. उनका शायद probably welcome sir. हाँ, सवाल क्या था? मैंने आप नीतीश जी आपके अच्छे आंकड़े सुने। हाँ, सवाल था क्या? मैं क्योंकि जब मैं जवाब दे रहा था उसी बीच में कट गया था, तो सवाल फिर किसी और ने पूछा। सर मैंने आपसे पूछा था कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिहार में नहीं आएगा तो क्या पब्लिक इन्वेस्टमेंट या पीएसयूज के थ्रू नहीं, मेरा जवाब आपको ये था कि उसके लिए दमड़ी होनी चाहिए। सरकार कंगाली की स्थिति पे खड़ी है, सरकार कंगाली के कगार पे खड़ी है। उसका भी इतिहास समझ लीजिए। उसका इतिहास ये है कि पिछले 9 क्वार्टर से, यानी कि 2.25 साल से ग्रोथ रेट घटती चली जा रही थी, यानी कि रेवेन्यूज कम होती चली जा रही थी। अब टाइमलाइन से जरा सा उससे पहले सोचिए। टाइमलाइन इस 2.25 साल का, ये टाइमलाइन कब शुरू होती है? ये टाइमलाइन शुरू होती है डिमोनेटाइजेशन के धक्के से। और डिमोनेटाइजेशन का धक्का से अर्थव्यवस्था ऊपर उठने की कगार पे थी, मगर फिर एक पुअरली प्लान्ड, पुअरली डिजाइन्ड एंड हरिडली इम्प्लीमेंटेड जीएसटी आ गया। उसका अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे और बड़ा धक्का लगा, एमएसएमईज पे और बड़ा धक्का लगा। So the economy went into slowdown, and that is when your unemployment began to increase. Please don't say to me कि कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ हो रहा था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ नहीं हो रहा था। This was self-inflicted damage, as though that was not enough. At the beginning of last year, when the economy was already slowing, just before the election, the personal income tax rate threshold, please remember, was raised from 2.5 lakh to 5 lakh. Am I right? Or am I right? You know what the impact of that was? There were 60 million tax filers, taxpayers before, when the threshold was 2.5 lakhs per income per annum. That suddenly fell to 15 million. 1/4 ho gaya. 1/4 overnight, just weeks before the elections. This was announced in the election, in the budget of 2019, weeks before the election. Pehli baat. Then suddenly in the middle of last year, the corporate tax rate was dropped from 30%. Are you there? Yes, sir. We can hear you. Was dropped from 30% to 25%. Now, this had been promised in the budget of 2015, that every year we will reduce the corporate tax rate by 1 percentage point, so that in 5 years' time, we will be down to 25% to make us comparable to East Asian countries. Fine. But that didn't happen. Over a 5-year period, that did not happen. It happened suddenly overnight, when private investment was not reviving in any case. And suddenly the government reduced the corporate tax rate and reduced its own revenue by 1 lakh crores suddenly overnight, by reducing the corporate tax rate from 30 to 25%. And did the private investors increase their investment? No. The investment to GDP ratio was falling consistently for the last 5 or 6 years, and it has continued to fall after that. तो वो और मतलब corporates पैसा बना करके घर बैठे हैं या उसको विदेश ले जा रहे हैं। उसके अलग आंकड़े मैं आपको बता सकता हूं, मगर अब समय नहीं है उसको बताने का। तो अब इकोनॉमी गिर रही है, जीएसटी की रेवेन्यूज घट रही हैं, उस तरीके से नहीं हो रही जितनी उम्मीद थी, और आपने कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी घटा दी, पर्सनल इनकम थ्रेशोल्ड भी बढ़ा दिया, तो आपकी डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज भी कम हो गई। तो आपका जो फिस्कल क्राइसिस, which was already there from about 1.5 years ago, became more serious. So that when pandemic hit, you had no fiscal space. By contrast, in 2008, the economy had massive fiscal space. So the potential for putting in place a fiscal stimulus was there.
But this was but the fact that there was no fiscal space just before the pandemic hit is a self-inflicted wound. It's a self-inflicted fiscal crisis for the state. तो बिहार बेचारा क्या कर लेगा? जब केंद्र कंगाल है तो बिहार बेचारा क्या कर लेगा, मुझे बताइए. इसलिए मैं ये बात कर नहीं पाया. बिहार needs to, if it wants to strengthen its health system, it needs to issue very specific with special permission, issue health bonds. वो जो पैसा आए उसको हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्ट किया जाए और रूरल सिस्टम में इन्वेस्ट किया जाए. So let me stop there, but anyway, if you have other questions. Sorry. Nitish, you can, Abhishek, address Abhinav's question, who is asking at which are the sectors which should be targeted for rapid growth in Bihar, and which sector growth can be more impactful. I've already mentioned it. You can think about public investment in infrastructure, because that will create construction jobs. You see, please try and appreciate that what Bihar needs to do is to revive its agriculture. And by the way, Nitish, you were mistaken. The share of total workers employed in Bihar's agriculture is 56%, while in the nation it is 44%. So the dependence on agriculture is not as great as you thought, but it is very great. But the problem is Bihar's agriculture is extremely vulnerable. Why is it vulnerable? Because the northern part of Bihar's agriculture is constantly impacted by floods. And in the southern part, you suffer drought. So because Bihar is well endowed with rivers, those rivers have to be bunded. Those rivers have to be channelized. The water has to be conserved. And that way you can prevent both drought as well as flooding. That alone will improve the productivity of agriculture. Please understand that Bihar and UP are very well endowed because of their water and because of the alluvial soil that they have, because they have a multiplicity of rivers flowing through them. Please try and appreciate. I don't know the relevant statistic in Bihar, but I can tell you for UP that in the country only 40% of agriculture or cultivated land is irrigated. In the country. In UP it is 72%. That means what should be the focus of development in UP? Agriculture. Invest in agriculture. I'm sure that I'll be very surprised if the share of irrigated land in Bihar is any less than UP. But you have to conserve the water. If you did that and you possibly invested in food processing, about which there is more talk now, then there is a possibility. But after all, you need to, the farmers, the small and marginal farmer who account for 84% of all farmers, if they were to produce surplus output, then there is something to process. You can't, if you don't produce a surplus because your agriculture is not productive, then where will the income come from? The demand come from? The demand and income will come only from your workers leaving for other states and sending back remittances. Please try and understand the macroeconomy here. Let me stop there. Thank you very much, sir. I think sir का internet connection lose हो गया है. Do we have another question?
especially when some economists have started saying that unemployment is a permanent structure in a capitalist economy, and security and social security for all looks all more necessary. This question is by Vivek Kumar. Nitish, Ji, So I think sir kind of did address this question by saying, yes. and it was partially addressed in terms of that when he said that for the over the next 3 to 4 months, a direct cash transfer should happen. I think that I'm was just back. yeah. Oh, sir, is back. Okay, you know, I'm obviously losing connection for whatever reason repeatedly, despite the fact that I have, you know, the fastest possible internet at home. You know, India doesn't provide any faster internet. We have 200 Gbps, meaning for every second we can sort of. Anyway, point is, we'll have to bring this to a close in the after this next question, if you don't mind. Yeah, because I'm losing connectivity very often. I don't know why that's happening. So the problem is not at my end. Haan, boliye. Sir, there is a question from Vivek Kumar where he asks what to do about social security. His question is, quote unquote, especially when some economists have started saying unemployment is a permanent structure in capitalist economy, social security for all looks all the more necessary. Your quick comments on this. जी, तो सबसे पहली बात देखिए, सोशल सिक्योरिटी के दो भाग होते हैं. एक भाग होता है सोशल असिस्टेंस, उसकी मैं बात कर चुका, मिनिमम इनकम गारंटी की, तो उसको मैं फिर से नहीं उठाऊंगा. दूसरा भाग होता है सोशल इंश्योरेंस, यानी कि ओल्ड एज पेंशन, डेथ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस एंड मैटरनिटी बेनिफिट, जिसको नीतीश जैसे और आरुषि जैसे लोग, वो आप काम करते होंगे, अगर काम करते हैं तो ये सब आप यू टेक इट फॉर ग्रांटेड. आई टेक इट फॉर ग्रांटेड. You know, when I retire, I will get a pension. If I suffer sudden death, then I will get a insurance cover. If I was a woman, I would be covered, or my wife would be covered into maternity benefit. The point is, 91% of our workforce is without this social insurance. 91. Now, the government has come up with a social security code, but it's a very poorly designed social security code, despite the fact that it's the third draft. I was involved in the first and second drafts. The Ministry of Labor had asked me, in fact, to chair a task force, an expert group in 2018. Unfortunately, the ministry moved rather rapidly and moved on beyond that. They've come up with a new draft, which is absolutely appalling. The Lok Sabha Secretariat got in touch with me in April, sent me the draft, which was being discussed in the Standing Committee for Labor, and I unfortunately had to say that this is not what the country needs at this point. This has to be redrafted, and currently the Standing Committee on Labor is considering that the comments of everyone, and it's probably drafting its report, and it's highly likely that the draft will go back to the Ministry of Labor, which will have to redraft it. So एक चीज मैं आपको बहुत साफ ढंग से कह दूं कि जो हालत है उस ड्राफ्ट की, उसमें और पहले के स्थिति में कोई फर्क नहीं है, जीरो फर्क है. बिकॉज दिस ड्राफ्ट लॉ इस, जिसे आप लोग कई लोग छात्र हैं, कट एंड पेस्ट जॉब करते हैं. जब ऐसे लिखना पड़ता है तो घर बैठ करके यहां से उतारा वहां से उतारा, भानुमति का पिटारा जोड़ा. कट एंड पेस्ट. दिस लॉ इज अ कट एंड पेस्ट जॉब. पहले वाले जो लॉज थे सारे 8 लॉज, उनको उनके चैप्टर बना करके इस लॉ में पास करने की कोशिश हो रही थी. This has to go back to the drawing board, and you have to lay out a vision. And I should close with this because you really need to understand this very, very carefully, all you young people, that we keep calling ourselves a young country, We are one of the youngest countries of the world. In 20 years, we'll stop being a young country. We have only 20 more years left with the demographic dividend. When in 2040, our dividend will be over. China's dividend is already over 5 years back in 2015. And they are saying, we have become old without becoming rich. Europe became old after they became rich, but we have become old without becoming rich. और चाइना कह रहा है, जो हमसे कहीं ज्यादा उनकी विकास दर तेज रही है,
उनकी पर कैपिटा इनकम चौगुनी है हमसे, और वो आज कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति कितनी गंभीर है, कितनी विकट है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सीरियसली सोशल सिक्योरिटी के बारे में आज सोचा जाए। मैंने ये एक लेख लिखा था, अभी फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया था इस पे। इसके अलावा एक लंबा लेख लिख रहा हूं इस पे, जो आने वाला है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की साइट पे, जिसमें मैं बेसिकली ये कह रहा हूं कि अगर आज आप सारे गरीबों को एक ओल्ड एज पेंशन देना शुरू कर दें आज, और वो संभव है, गरीब को सिर्फ, सबको नहीं, ओल्ड एज पेंशन अगर आप देना शुरू कर दें तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी, जिससे डिमांड अगर बढ़ते ही इकोनॉमी में सुधार आना शुरू हो सकता है। ये जो छोटी इकाइयां हैं वो फिर से खड़ी हो सकती हैं, वो संभव है। तो एक तरफ मिनिमम इनकम गारंटी करिए, दूसरी तरफ ये ओल्ड एज पेंशन बनाइए, उसके अलावा लॉ को पास करिए जिसमें डेथ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस हो, मैटरनिटी बेनिफिट हो। अगले 5-6 सालों में आप उसको लागू करना शुरू करिए। तो ये बात मैं अपनी कह करके अपनी बात पूरी खत्म करूंगा। धन्यवाद। सर, आपने एक्चुअली मेरे क्वेश्चन को भी आंसर कर दिया। मेरे 2 कंसर्न्स थे जो थोड़ा वरी कर रहे थे कुछ टाइम से। एक्चुअली बहुत कुछ सालों पहले से हमें पता था कि हमारा डेमोग्राफिक लेवल अभी उतना है जो हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और चाइना का निकल चुका है। कुछ सालों से पहले से हमें ये पता था, और स्पेशली अब फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस होने से पहले आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हम सबसे ज़्यादा डिमांड को टारगेट करेंगे, डिमांड को वो करेंगे। हम सिर्फ बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्शन से रिकवर करना चाह रहे हैं। तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से, बट फिस्कल स्टिमुलस आई डोंट थिंक इतना इनफ है। बट आपने और क्लियर कर दिया, सो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। और आपने आज बहुत अच्छे से हम लोग को अच्छे से हर चीज़ डिटेल में स्टैट्स के साथ समझाई। जो एंड वी आर रियली हैप्पी एंड वी आर वेरी ग्लैड दैट यू जॉइंड अस टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच नीतीश जी। आपने भी बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन में पहले ऑडियंस को अच्छे से टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे हमें बहुत फायदा हुआ आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू। बहुत प्रसन्नता हुई मुझे आप लोग के संग जोड़ करके। थैंक यू सो मच सर। ओके, बाय।